Hello students of class 6B. Now I welcome you in this new video. In this video I am going to discuss your chapter 4 of subject physics. So topics to be covered in this video are: first we will discuss about the definition of the machines. So first term is actually what a machine means. Then we will come to the second topic, that is types of machine. Then we will discuss works or functions of a machine. Then we will march towards our next topic, that is terms related to the simple machine. Then finally comes the types of machine, then lever, and then finally the last topic is pulleys. Now I would like to tell you one more important thing is that some topics have been removed from your new syllabus, and topics which are removed are wedge, inclined plane, and wheel and axle screw. These are four topics which has been removed from your syllabus, and also numericals related to the levers have also been removed from your syllabus. So I am not going to discuss all these topics which I have just mentioned. So now let us come to our first topic, that is definition of a machine. So machine is anything that reduces human effort. Now हम कैसे ये human effort reduce करती है, we will see in the later half of the video. First I will cover all the theoretical portion. So machine is anything that reduces the human effort. So this is the definition of a machine. Now on the basis of construction we have two types of machine, complex machine and simple machine. Complex machine का मतलब है all those machines which are complex in nature. Complex मतलब जो उसका internal structure है, it is not simple enough. Simple machine की अगर जो बात करें, these contain one or two moving parts only. Okay, so I hope things are clear to you. Now I will I will exemplify all the things. Now these are some simple machines here. You can see that screwdriver, hammer, broom, spanner. So all these you can see that the construction is very simple. They either have a one arm or at most they have two arms. Now when we talk about complex machine, these are all are complex machine. You can see that wall clock, cycles, washing machines. So these have many parts, many moving parts, and the internal structure of all these machines is also complex. So I hope simple as well as complex machines will be clear to you. Now we have to discuss about the simple machines. So here are some simple machines: pulley, lever, wheel and axle, then comes the wedge, then is the inclined plane and screw. Initially all these were in your syllabus, but after reducing the syllabus you only have this, that is lever, and you have this pulley. So only these two you have to study, and remaining four you will not study. So now we will discuss some of the functions of the simple machine. So a machine multiplies the force. So a machine can be used as फोर्स मल्टीप्लायर. फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब सिंपल, अगर जो मैं लैंग्वेज में बात करूं कि आपको कम फोर्स लगा के ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. वी विल सी हाउ एक्चुअली दिस हैपन्स. So now next function is a machine helps to change the direction of a force. So now I think I can. Now you can see that in this particular picture you are applying a downward force. Here you can see that you are applying a downward force. ये जो force आपने लगाया है, you are applying this force in the downward direction, and this load is moving in the upward direction. So which means, and ये जो हमारा machine है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, pulley. So which means this pulley is used to change the direction of the force. आपने जो force लगाया है वो downward लगाया है, और आपको जो आउटपुट पे फोर्स मिल रहा है वो अपवर्ड मिल रहा है, बिकॉज इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये हमारा जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. विच मीन्स
So second point I think is clear to you. First point I will discuss in the again later half. So now third function is that a machine can change the speed. It can also be used to change the speed. A machine takes force to act at some desired point. Okay, so with the help of machine you can apply a force at a desired point. Suppose now I will take the example of a crowbar. Okay, now I can take the example of hammer also. Or so hammer में basically हमारा क्या होता है, suppose you have some nut over there और आपको नट को खोलना है एंड फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर दो. सो विच मीन्स एंड दिस इज़ अ मशीन, सो आपने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है. सो विच मीन्स दिस मशीन हैज़ ट्रांसफर्ड this force from this point to this particular point. So this is what point number fourth means. Now a machine enables us to do dangerous and unsafe work. So this is another function of a machine. Now our next topic is terms related to the simple machines. First is effort. So effort का means input force applied by the user. जो भी उस मशीन को यूज़ कर रहा है वो जितना भी इनपुट फोर्स अप्लाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एफर्ट. लोड का मतलब ये है द फोर्स विच वी गेट ऑन द आउटपुट. जैसे you can take the example of this particular pulley system. Pulley is not visible though, but I think you will be able to understand. इसने अगर जो मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, सो 10 न्यूटन इज योर एफर्ट, एंड यहाँ पे अगर जो उसको 5 न्यूटन मिला है, सो 5 न्यूटन इज योर load. So effort means input force applied by the user, and load means output force produced by the machine. So this is, now I will take up your first point, which is a machine multiplies the force. So suppose I can take the example of this very system. Suppose आपने यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगाया, मैंने बोला कि आपने 10 न्यूटन का लगाया. सो होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मशीन्स के केस में यहाँ हमें 20 न्यूटन फोर्स मिलने लगता है. मतलब आउटपुट पे मैंने कितना दिया 10 एंड सॉरी इनपुट पे मैंने कितना लगाया 10 न्यूटन का फोर्स एंड आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 20 न्यूटन का फोर्स. सो विच मीन्स इनपुट पे हमें ज़्यादा फोर्स मिल रहा है, सॉरी आउटपुट पे हमें ज़्यादा फोर्स मिल रहा है. तो इसको इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, मशीन इज़ अ वर्क फोर्स मल्टीप्लायर. सो आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ नाउ क्लियर टू यू. फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब ये है, फॉर अ लेस फोर्स एट द इनपुट वी गेट अ लार्जर फोर्स एट द आउटपुट. नाउ our next term is fulcrum. It is a fixed point about which machine can turn while doing the work. Now we will see. Again I can take this very figure. Now you can see that दिस इज़ द लीवर एंड यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे हमारा लोड है. ये लोड हमारा, जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ तो लोड हमें कैसा मिलेगा, ऊपर की तरफ. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने में यूज़ कर सकते हैं. एंड इस पॉइंट को अगर जो देखें, सो दिस लीवर विल रोटेट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ. सो आई थिंक फल्क्रम इज़ क्लियर टू यू. फल्क्रम हमारा वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट लीवर रोटेट करता है. Now our next definition is, which is very important, mechanical advantage is equals to load upon effort. So now this mechanical advantage is a very important term. So MA is equals to, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हमने जो इनपुट पे अप्लाई करा वो हमारा एफर्ट था. एफर्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई. सो एफर्ट हमारा सपोज करें 10 न्यूटन था, एंड जो लोड मैंने अज्यूम करा था लास्ट एग्जांपल विच आई वाज डिस्कसिंग, वो हमारा 20 न्यूटन था. कैसे आया, कहाँ से आया, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट लोड हमारा कितना है. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करना है तो आपका लोड हमारा 20 है एंड एफर्ट हमारा कितना है 10 है. सो दीज विल बी कैंसल्ड, सो योर MA विल बी इक्वल टू 2. सो विच मीन्स ये जो अगर जो कोई ऐसी मशीन है हमारे पास जिसमें 10 एफर्ट के लिए
20 लोड हमें मिल रहा है, सो विच मीन्स उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 2 होगा, एंड विच मीन्स विथ दिस मशीन इज एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. So I think the definition of mechanical advantage is clear to you, and also how to calculate a mechanical advantage. So now coming to the next definition, now we will discuss few more terms. So your first term is input. So input is the work done on a machine, which means suppose I have applied a 10 Newton of force as I had assumed before, एंड इस 10 न्यूटन से जो हमारा लोड में डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा 2 मीटर का होता है. सो वर्क डन ऑन द मशीन ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 जूल. नाउ जैसा मैंने एज्यूम करा था, लोड हमारा कितना, मतलब इस 10 न्यूटन फोर्स से हमने कितना लोड लिफ्ट किया था, 20 का, एंड सपोज लोड में डिस्प्लेसमेंट होता है 3 मीटर का, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60. सो दैट इज़ योर आउटपुट वर्क. सो आई थिंक this is your input, 20 joule is your input and 60 joule is your output. Now so this 60 joule is called as output work or simply output. So now we will introduce a new term called efficiency. So efficiency, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कितना हमें आउटपुट मिला एंड कितना इनपुट मिला. सो अगर जो यहाँ से आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो यू नो दैट आउटपुट इज इक्वल्स टू 60. सो योर आउटपुट इज इक्वल्स टू 60 and your input is 20, so this is 3, so your efficiency will be equal to 3. Now since it is a hypothetical example, because efficiency of any machine cannot be greater than 1, which means efficiency की जो maximum value हो सकती है वो कितना हो सकता है आपका 1, और अगर जो मैं उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो हमारा 100% हो सकता है फॉर अ आइडियल मशीन. अगर जो मशीन हमारी आइडियल है सो तब हमारा इफ़िशियंसी ये होगा. एंड प्रैक्टिकल मशीन के लिए, मतलब जो भी मशीन पे हम वर्क करते हैं उनका इफ़िशियंसी हमेशा क्या रहता है, हमारा 1 से कम रहता है. So now finally we have come to our first important topic, that is lever. All the things which have been discussed previously are also important. So now we will talk about lever. A lever is a bar that is free to pivot or turn around a fixed point. This fixed point is called as fulcrum, which I have told you. Suppose you have a seesaw. seesaw हमारा कुछ ऐसा होता है एंड यहाँ पे जो हमारा स्टैंड होता है वो लगा होता है. एक बच्चा हमारा यहाँ पे कोई बैठ सकता है सेकंड यहाँ पे, या यहाँ पे 2 लोग हो सकते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट सपोज दिस children is heavier and this is less heavier, so this will go downward and this will go upward. So which means this whole seesaw is moving about or rotating about this particular point. So this particular point is called fulcrum. And अगर जो मैं लीवर की डेफिनेशन देखूँ, is a bar that is free to pivot. So ये हमारा एक बार है और you can say a rod जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है. सो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, सीसॉ एक लीवर का एग्जांपल हो गया. नाउ लीवर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. इनपुट आर्म ऑफ द लीवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू द पॉइंट वेयर इनपुट फोर्स इज अप्लाइड. नाउ सी दिस इज योर फल्क्रम पॉइंट एंड सपोज करें यहाँ पे मैं एफर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज़ योर एफर्ट, एंड यहाँ पे हमें कुछ लोड मिल रहा है, दिस इज़ योर लोड. सो इनपुट आर्म का उन्होंने डेफिनेशन क्या बोला है, द इनपुट आर्म ऑफ अ लीवर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड. सो ये हमारा फल्क्रम हो गया एंड ये हमारा एफर्ट है. सो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, क्योंकि एफर्ट पे हमने इनपुट दिया है, एफर्ट जहाँ पे लगाएंगे, एफर्ट मीन्स ही सॉरी इनपुट होता है. सो ये जो लेंथ हो गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म, दैट इज ई F. Remember this, EF means effort arm. Now distance between load and fulcrum is called load arm. So LF is your load arm. Now we will talk a next important topic, that is principle of lever. So you can see that
दिस इज़ योर फल्क्रम पॉइंट एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया है एंड ये हमारा क्या है, लोड है। सो किसी भी लीवर के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज टर्क होना चाहिए वो क्लॉकवाइज टर्क्स के इक्वल होना चाहिए। सो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू लोड आर्म। इन रेजिस्टेंस का यहाँ पे मतलब किससे है, लोड से। रेजिस्टेंस मीन्स हमारा होता है लोड। सो वेन एवर यू एनकाउंटर अ टर्म कॉल्ड रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस को आप किससे कंपेयर करेंगे, लोड से। सो एंटी क्लॉकवाइज टर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टर्क। अगर सो ये हमारा हमेशा होल्ड करेगा किसी भी लीवर के लिए, दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। सो एंटी क्लॉकवाइज टर्क मतलब जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराए। सो क्लॉक आप लोग जानते हैं क्लॉक विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉक मतलब ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में वॉच हमारी मूव करती है उसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में। सो दिस मोमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ये हमारा एफर्ट है, ये इसको एंड ये हमारा एफर्ट आर्म हुआ, ये लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। नाउ अगेन ये लोड हमारा किधर लगाएगा, इस तरफ का मूवमेंट लगाएगा, इस तरफ मतलब वो ऐसे रोटेट कराएगा, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। सो रेजिस्टेंस इनटू लोड आर्म। नाउ अगर जो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस एंड इस एफर्ट को नीचे ले आऊँ, ये जो एफर्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस अपॉन एफर्ट, सो रेजिस्टेंस अपॉन एफर्ट, सो लोड आर्म को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो लोड आर्म हमारा अपॉन में आ जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो नाउ वी हैव अ न्यू फॉर्मूला। वी नो दैट रेजिस्टेंस को मैं लोड लिख लेता हूँ। वी नो दैट एम ए इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, EFFORT सॉरी, लोड अपॉन एफर्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो अगर जो एंड यहाँ से आप देख सकते हैं लोड अपॉन एफर्ट की वैल्यू किसके इक्वल है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो मैं इसको EF बोल दूंगा एंड इसको FL बोल दूंगा। सो यहाँ से हमारे MA के दो फॉर्मूले आ गए। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर MA। Now having discussed about the formula for MA for the levers, now we will come to the types of the lever. If so there are three types of levers. First is you can see that fulcrum हमारा बीच में है एंड एक तरफ हमारा आउटपुट फोर्स है एंड एक तरफ हमारा इनपुट फोर्स है। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। यहाँ पे देख सकते हैं फल्क्रम हमारा एक साइड में एंड बीच में हमारा आउटपुट फोर्स है। आउटपुट फोर्स मीन्स लोड, don't be confused with the output force. Output force simply means load. I will write it at load and input force means effort, so I will write it as capital E. Again जब हम थर्ड क्लास लीवर के, सो दिस इज योर सेकेंड क्लास लीवर। अगेन डू रिमेंबर सेकेंड क्लास लीवर में लोड हमारा बीच में रहेगा। देन कम्स द थर्ड क्लास लीवर। सो थर्ड क्लास में जो एफर्ट है हमारा वो बीच में रहेगा एंड लोड हमें आउटपुट पे मिलेगा। नाउ one important thing is that suppose consider a second class lever. Now I will assume a second class lever. So second class lever में आपको ये बात याद रखनी है, ये मैं इधर बना रहा हूँ। अब देख सकते हैं सेकेंड क्लास लीवर में क्या है, हमारा आउटपुट फोर्स बीच में है। सो आउटपुट फोर्स मीन्स योर लोड इज इन द मिडिल एंड एफर्ट आप यहाँ पे लगा रहे हो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, एफर्ट, एंड यहाँ पे आपका फल्क्रम पॉइंट है। सो एफर्ट आपने यहाँ से अगर जो डिस्टेंस में कैलकुलेट करूँ या डिस्टेंस में देखूँ समझने की बात, तो ये हमारा आई थिंक 50, अगर जो मैं अज्यूम करूँ तो ये 20 सेंटीमीटर एंड ये डिस्टेंस को मैं 10 अज्यूम कर सकता हूँ बिकॉज ये डिस्टेंस हमारा ऑब्वियसली बड़ा ज़्यादा होनी है। सो नाउ MA की अगर जो मैं बात करूँ, सो MA इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा आया था EF अपॉन एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, दैट इज LF। सो LF, सो अगर जो मैं यहाँ से वैल्यूज़ रखूँ, सो एफर्ट आर्म हमारा 20 है एंड लोड आर्म हमारा 10 है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, MA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। योर MA इज इक्वल टू 2। नाउ MA का एक दूसरा फॉर्मूला होता था लोड अपॉन एफर्ट, या मैं सीधे L अपॉन E लिख देता हूँ, लोड अपॉन एफर्ट इंटू 2। सो सपोज एफर्ट आपका 10 न्यूटन का था, एफर्ट आपने कितना लगाया था, 10 न्यूटन का। सो लोड इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 2 एंड ये जो 10 होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। सो लोड इज इक्वल्स टू 20 विच मीन्स
अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो एफर्ट था वो आपका 10 न्यूटन था एंड जो लोड आपका आ रहा था वो 20 आ रहा था। जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या था? मशीन इज समथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, रिड्यूसेस, writing is very difficult on the mobile screen, so again I will write your effort is simply machine was something, machine was defined as something that reduces human effort. so यहाँ से देख सकते हैं आपने लोड आपने कितना लिफ्ट किया 20 न्यूटन का एंड आपने फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन का। आइडियली क्या होना चाहिए था, क्योंकि आप 20 न्यूटन हमारा लिफ्ट कर रहे हो लोड, तो 20 न्यूटन का आपको फोर्स लगाना चाहिए था, बट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन मैंने अपने एफर्ट को रिड्यूस कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट दैट डेफिनेशन मीन्स। जो मशीन हमारा होता है वो कम फोर्स लगा के, कुछ केसेस में कम फोर्स लगा के हमारा ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता है। सो दिस इज़ व्हाट मशीन मीन्स। नाउ ये तो हमने सेकंड क्लास लीवर की बात करी। अगर जो मैं थर्ड क्लास की बात करूँ, सो थर्ड क्लास का अगर जो मैं फिगर बनाऊँ, सो ये हमारा फल्क्रम पॉइंट रहेगा एंड जो लोड रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा एंड एफर्ट ये आप लगाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफर्ट आर्म हमारा 10 सेंटीमीटर होगा एंड लोड आर्म कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। सो यहाँ से अगर जो मैं निकालना चाहूँ, सो जो हमारा एम ए आएगा, सो एम ए इज इक्वल्स टू 10/20 दैट इज़ 1/2। सो एंड पिछले केस की अगर जो मैं बात करूँ तो वहाँ एम ए कितना आया था 2। नाउ कीप दिस टू थिंग्स ऑल्सो इन माइंड। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगा। आई विल रफ इट, अभी इसका ज़रूरत नहीं है हमें। सो अब यहाँ से अगर जो मैं एम ए का एक दूसरा फॉर्मूला था लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, ओके। सो एफर्ट सपोज करिए आपने 20 लगाया, सो लोड एफर्ट की वैल्यू कितनी हो गई 20। सो 20 हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, सो एल इज इक्वल्स टू 20/2 10 न्यूटन। सो यहाँ से अगर जो मैं दो चीज़ें मैं ऊपर टॉप पे नोट डाउन कर लेता हूँ, या मैं एक पूरा टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने सेकेंड क्लास के लिए लिख लिया एंड ये मैंने थर्ड क्लास के लिए लिख लिया थोड़ा सा। सो थर्ड क्लास में हमारा लोड कितना आ रहा था, सेकेंड क्लास में सॉरी 10 न्यूटन, सॉरी एफर्ट हमारा कितना आ रहा था 10 न्यूटन का एंड लोड हमें कितना मिल रहा था 20। यहाँ पे केस उल्टा था, यहाँ पे हमारा एफर्ट 20 का आ रहा था एंड लोड आई वॉज गेटिंग एज 10 न्यूटन। सो नाउ यू कैन सी दैट सेकेंड क्लास जो लीवर है वो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब हमें आउटपुट कम देना पड़ रहा है, इनपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है, एंड थर्ड क्लास लीवर में जस्ट उल्टा हो रहा है। सो फ्रॉम दिस यू कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट second class lever always works as a force multiplier, whereas third class lever is always acts as a force diminisher. Now some examples of the first class lever. So this is your scissors, you can see that fulcrum हमारा यहाँ बीच में है, एक तरफ हमारा एफर्ट है दूसरी तरफ लोड है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास लीवर। देन कम्स द एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लीवर, यहाँ हमारा लोड है, ये हमने एफर्ट लगाया है एंड यहाँ पे हमारा फल्क्रम है। सो इसका जो एम ए आएगा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नाउ वी विल कम थर्ड क्लास लीवर। सो ये हमारा ट्वीज़र एंड स्टेपल रिमूवर, देख सकते हैं एफर्ट हमारा बीच में लगा, एक तरफ फल्क्रम है एंड एक तरफ लोड है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ second class lever, sorry third class lever. Now come to the last topic for this video, a pulley. A pulley is a grooved wheel with a rope, chain or cable running along the groove. A fixed pulley is modified as first class lever. Okay, so let's see what actually, how actually pulley works. So you can see that from the figure you can easily predict that this 4 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड डाउनवर्ड, विच मीन्स ये हमारा क्या है एफर्ट है, एंड ये जो फोर्स हमारा ऊपर की तरफ है ये हमारा क्या है लोड है। सो यू कैन सी दैट अगेन दिस पुली इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन, बिकॉज इसका अगर जो आप एम ए कैलकुलेट करने जाओगे, सो लोड अपॉन एफर्ट, लोड भी हमारा 4 है एंड एफर्ट भी 4 है, सो इट विल बी 1। सो एम ए फॉर दिस पर्टिकुलर पुली, दिस पुली इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली, इज ऑलवेज 1। सो नाउ इस साइड को हम बोल सकते हैं, ये साइड हमारा इनपुट
के तौर पे यूज़ होता है and this side is used for the output. So this arm, the length of this arm is called input length, and length of this arm is called output length. So, and first that pulley is always used to change the direction of the applied force. So, now with this I close this video, hoping that you all have enjoyed this particular chapter, explanation of this chapter. Now there is a very interesting homework to you. You have to write the names of some simple machines which are used in your house, and you have to also classify them according to first, second and third. Thank you. According to the first, second and third class of levers. Thank you very much.